بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس آج ہم نے کرنا ہے کویسچن نمبر 1 کا پارٹ ڈی۔ یاد رہے کہ ہم بی اے سیریز 2019 کا جو ایگزام ہوا ہے اس کے کویسچنز آنسر کو سالو کر رہے ہیں۔ جو بھی کویسچن پیپر ہمیں مل رہا ہے بی اے سی کا، اس کے سب کویسچن کو ہم نے سالو کرنا ہے۔ اور اس وقت جو ہم پیپر سالو کر رہے ہیں وہ ہے بی اے انگلش اے کا پیپر ہے۔ یہ ایگزام ہے بی اے سی 2019 یونیورسٹی آف سرگودا کا، اور کویسچن نمبر 1 کا پارٹ نمبر ڈی سالو کرنا ہے۔ تو چلیے ہم اسٹینزا گیون ہے، ہم اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر اس کا یاد رہے کویسچن نمبر 1 ہوتا ہے ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کی ایکسپلینیشن بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ ہم کریں گے ابھی اور پھر اس کی ایکسپلینیشن بھی کریں گے۔ تو پہلے ایک بار ریڈ کرتے ہیں۔ You will see Nicholas how I can۔ اور یہ سینٹینزا پویم میں سے نہیں لیا گیا، یہ سٹینزا 1 ایکٹ پلے میں سے لیا گیا ہے۔ یاد رہے کویسچن نمبر 1 جو ہوتا ہے اس میں 3 سٹینزاز پویمز میں سے لیے جاتے ہیں اور 2 سٹینزاز جو ہیں وہ 1 ایکٹ پلے میں سے لیے جاتے ہیں۔ پہلے 3 سٹینزا کویسچن نمبر 1 کا پارٹ اے ہوتا ہے، بی سی ڈی ای ایف، یہ 5 پارٹ ہوتے ہیں ٹوٹل، جن میں سے پہلے 3 پارٹ کے سینٹینزا گیون ہوتے ہیں وہ پویمز میں سے گیون ہوتے ہیں، اور جو دوسرے 2 ہیں یعنی وہ کس میں سے گیون ہوتے ہیں، وہ 1 ایکٹ پلے میں سے گیون ہوتے ہیں۔ تو یہ سٹینزا ہمارا پارٹ ڈی ہے، یعنی سی تک تو پویمز میں سے گیون تھے، اب ڈی اور ای یہ پارٹ جو ہیں یہ 1 ایکٹ پلے میں سے گیون ہوں گے، اور یہ بھی 1 ایکٹ پلے میں سے گیون ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ You will see Nicholas how I can love and forgive, my love will die out with me only when this poor heart will cease to beat۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں جو ہے شاعر کیا کہتا ہے، رائٹر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نائکولس ایک بہت بڑا جو ہے فلاسفر کا نام ہے، اور اس نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے یہ سٹینزا۔ اس کو کہتا ہے کہ نائکولس تم دیکھو گے کہ میں کس طرح پیار محبت میں کھو جاتا ہوں، سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ My love will die out with me، میری محبت میرے ساتھ ہی مرے گی، یعنی جب تک میں خود زندہ ہوں میری سانسیں چلتی رہیں تو میں بھی محبت میں گم رہوں گا۔ Only when this poor heart will cease to beat، اور کب یہ محبت ختم ہوگی، مر جائے گی، جب میرے دل کی دھڑکنیں رک جائیں گی، جب میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھا سٹینزا اور اس کی ریڈنگ اور ساتھ چھوٹی سی ٹرانسلیشن۔ اور اب اس کے جو ہے ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ کرنا ہے۔ ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کے رائٹر کا نام لکھنا ہے اور اس پویم یا 1 ایکٹ پلے کا نام لکھنا ہے۔ تو یہ تو جب آپ پورے 1 ایکٹ پلے کو ریڈ کریں گے اس کے بعد ہی پیپر میں آپ کر پائیں گے کہ اس کا پوائٹ کون ہے یا رائٹر کون ہے اور اس کا سٹینزا کس 1 ایکٹ پلے یا پویم میں سے لیا گیا ہے۔ تو اس وقت یہ جو لیا گیا سٹینزا یہ دی بیئر 1 ایکٹ پلے ہے، اس میں سے لیا گیا ہے، اور اس کا جو رائٹر ہے وہ ہے اینٹن چیکھوف۔ یاد رہے یہ جو ہے رشین لینگویج ہے، اس میں وی کو ایف کی ساؤنڈ میں پڑھنا ہے، چیکھوف، اور یہ ایک رشین آتھر ہے۔ اور یہ جو پلے ہے اس کے بارے میں آپ کو ضرورت سے زیادہ انفارمیشن دیتا چلوں، کیونکہ یہ جو ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ ہے یہاں تک تو پیپر میں آپ نے لکھنا ہے۔ اب اپنی معلومات کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں یہ جو پلے ہے یہ اوریجنلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو نائکولیو سلوٹوف، یہ ایک پورا نام ہے نائکولس کا، اور یہ نائکولس جو ہے یہ نک نیم ہے۔ تو یہ اس کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، کس نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے؟ آتھر نے، جس نے یہ 1 ایکٹ پلے لکھا ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے چیکھوف۔ چیکھوف کا جو بوائے گڈ فرینڈ ہے، یعنی اس کی لڑکم یعنی یا بچپن کا جو دوست ہے، اس کو اس نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، اور اس پر جو ہے یہ فرسٹ پرفارم کیا گیا تھا۔ ظاہر 1 ایکٹ پلے وہی ہوتا ہے جو اسکرین پر آ کر ایک ہی دفعہ پورا پلے جو ہے ایکٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں 1 ایکٹ پلے، یعنی یہ صرف رائٹنگ کی حد تک نہیں رہتا، اس کو بالاخر اسٹیج پر جو ہے پرفارم بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس کو جو فرسٹ ٹائم پرفارم کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا اکتوبر 28 1888 میں، 1888 میں، اور اس کا جو ہے کہاں پر پرفارم کیا گیا تھا؟ یہ ماسکو میں پرفارم کیا گیا تھا۔ اور یہ جو اوریجنل لینگویج ہے اس کی وہ ہے رشین، جبکہ اس کو ابھی انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے، اس کی اوریجنل لینگویج رشین ہے۔ تو اور رشین میں بیئر کو بور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ اس میں کریکٹرز دیکھ لیں، یہ سارے یاد ہے، جب آپ نے پیپر میں کرنا ہے ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ تو صرف اس کا آتھر کا نام اور اس 1 ایکٹ پلے کا نام لکھنا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن میں آپ کو آپ کی اپنی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں، اپنی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں۔
करेक्टर्स इसके देख लें, समीरनोव करेक्टर है, पपवा है, लूका है, 3 मेन करेक्टर हैं और इसमें सर्वेंट्स भी हैं, लेकिन सर्वेंट्स जो हैं वो लूका भी एक सर्वेंट है। पपवा जो है वो वीडो है यानी एक बेवा है और समीरनोव एक मिडिल एज मैन है, एक दरमियानी उम्र का आदमी है। पपवा का जो शौहर है वो मर जाता है। अब मैं इसकी कहानी भी आपको बताता चलूँ। वो फौत हो जाता है और अभी पपवा बिल्कुल यंग होती है, तो वो जो है अपने नौकर के साथ, जो पपवा है अपने नौकर के साथ अक्सर डिस्कस करती रहती है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने शौहर की मोहब्बत में बेवा बन के रहूँगी, दूसरी शादी नहीं करूँगी जो है। और साथ ही साथ जो है वो ये भी कहती है कि अब मैं अपनी तमाम सोशल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दूँगी, तन्हाई की ज़िंदगी बसर करूँगी। और अचानक ही फिर इसी बातों के दौरान ही समीरनोव एंटर हो जाता है उसके रूम में। तो समीरनोव यानी कि स्क्रीन पे आ जाता है। तो जैसे ही वो एंटर होता है तो वो कहता है कि मुझे जो है आपके शौहर ने कुछ पैसे मुझसे उधार लिए थे, वो उन्होंने देने हैं और पेमेंट मुझे अभी के अभी की जाए, मैं इसको मज़ीद एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो वो कहती है अभी तो जो है मेरा जो मैनेजर है वो गया हुआ है अपने गांव, तो वो जब वापस आएगा तो आपको वो क्लियर कर देगा। तो वो कहता है नहीं, मैंने अभी ही सब कुछ आपसे वो क्लियर करवाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं दोबारा आऊँ। तो इसी दौरान जो है उनकी थोड़ी बहुत तलखी बढ़ जाती है और उसके नौकर जो हैं वो बाहर जाते हैं ताकि और आदमियों को बुला लाएं और इनके साथ थोड़ा सा हाथापाई करें और इसको घर से निकालें। तो जब वो उसको जो है बाहर जाते हैं नौकर, तो वो आदमी जो है वो उस औरत यानी पपवा और समीरनोव इनका आपस में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इसी दौरान वो जो है इन एक दूसरे के प्यार मोहब्बत में खो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई की बजाय मोहब्बत स्टार्ट हो जाती है। और फिर जब वो उसके नौकर आते हैं तो वो देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और इसी पर जो है वो पूरा प्ले जो है वो ख़त्म होता है। लेकिन अभी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, जो कि हमें पेपर का आंसर भी गिवन करना है, तो अभी इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक्सप्लेनेशन है। हमने एक रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट कंप्लीट कर लिया है और इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी और इसका आंसर और इसकी एक्सप्लेनेशन हमने करनी थी और ये एक्सप्लेनेशन अब आपके सामने है। हम इसको रीड आउट भी करते हैं और साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन भी करते हैं। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि द प्ले ओपन्स विद द पपवा एंड लूका इन पपवाज रूम, कि जो प्ले है वो पपवा और लूका के साथ शुरू होता है एक कमरे में। पपवा इज़ अ यंग ब्यूटीफुल विडो एंड लूका इज़ हर मिडल एज सर्वेंट। जो पपवा है वो एक खूबसूरत बेवा है, बेवा कहते हैं जिसका शौहर मर गया हो, और इसका जो लूका इसका सर्वेंट है, इसका नौकर है, जिसकी एज तकरीबन मिडल एज है। मिडल एज मींस 35 से ऊपर है, 35 साल से ऊपर है और 50 से कम है, इसको मिडल एज बोलते हैं। पपवाज हस्बैंड हैज़ डाइड एंड हैज़ लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टू हर। जो पपवा का हस्बैंड है वो कुछ दिनों पहले फौत हो गया है और उसके जो हस्बैंड की जितनी भी दौलत है या जितनी भी उसकी जायदाद है वो सारी अपने बीवी के नाम कर गया है। शी इज़ मच फ्रस्ट्रेटेड एट हिज डेथ। अब बीवी जो है यानी पपवा वो अपने हस्बैंड के मर जाने पर बहुत ज़्यादा अफसरदा है। शी अवॉइड्स ऑल सोशल लाइफ, वो अपनी तमाम समाजी ज़िंदगी को अवॉइड करती है कि मैं अब किसी किस्म की किसी लोगों से लेन देन खुशी गमी कहीं आना जाना मैं नहीं रखूँगी, बस मैं तनहा घर पे रहूँगी। हर सर्वेंट लूका एडवाइसेस हर दैट शी शुड लीड अ नॉर्मल लाइफ। उसका जो नौकर होता है वो उसको इस चीज़ का मशवरा देता है कि आपको इस तरह तनहा घर में बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जो होती है, मामूल की ज़िंदगी, उसको गुजारना चाहिए। क्योंकि अभी जो है पपवा वो यंग थी, अभी बिल्कुल जवान थी और जवानी में ही उसका हस्बैंड जो है वो फौत हो गया था, इसलिए उसका नौकर उसको एडवाइस करता है कि आप अभी यंग हो और अपनी ज़िंदगी को रवां दवां रखो। सडनली द डोर बेल रिंग्स नॉइसली। अब अचानक क्या होता है कि जब वो बातें कर रहे होते हैं तो बाहर दरवाजे पे बेल होती है। अ मैन समीरनोव एंटर्स द रूम। एक आदमी कमरे में दाखिल होता है जिसका नाम होता है समीरनोव। ही इज़ अ रिच लैंडलॉर्ड एंड आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द नेबरिंग एरिया। और वो आदमी कौन होता है? वो उनके पड़ोसी होते हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं और एक अमीर तरीन जो हैं या अमीर जो है लैंडलॉर्ड हैं, ज़मींदार हैं, जागीरदार हैं। तो वो आता है इनके घर। अब कहता क्या है? ही डिमांड्स टू गेट बैक इज़ 1200 रबल्स। अब जो है वो डिमांड करता है कि मुझे मेरे 1200 रूसी सिक्का जो है, रबल्स उसको कहते हैं, यानी मुझे अपने 1200 सिक्के चाहिए जो उसने क्या किए थे, विच ही हैड लैंड टू पपवाज हस्बैंड, जो उसने पपवा के शौहर को उधार दिए थे। पपवा रिक्वेस्ट हिम टू कम 2 days लेटर। अब जो पपवा है वो क्या कहती है? वो कहती है कि प्लीज़ आप जो है वो 2 दिन बाद आइएगा, क्योंकि उसकी हो सकता है कोई मजबूरी होगी। जो बुक्स में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि उसका मैनेजर जो है वो गाँव गया हुआ था, जिस वजह से उसने कहा कि आप 2 दिन बाद आना।
बट समीरनोव इंसिस्ट दैट पेमेंट शुड बी मेड एट वंस। जो समीरनोव था वो इस बात का इसरार कर रहा था कि मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए और सारी पेमेंट अभी करो। पप्पा गेट्स एंग्री एंड कॉल्स हिम अ कॉर्स बियर। इस बात पर पप्पा जो होती है उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहती है उसको वैशी रीच, उसको रीच कह देती है कि तुम एक दरिंदे हो, रीच हो। समीरनोव स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग ऑल विमेन एंड कॉल्स देम इनसिंसियर। जो समीरनोव होता है वो क्या कहता है, वो उसको एक तो जो समीरनोव है उसको उन तमाम औरतों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता है। सिर्फ उसी को नहीं, पप्पा को नहीं, बल्कि वो सारी औरतों को क्रिटिसाइज़ करता है कि जितनी भी औरतें हैं वो इनसिंसियर होती हैं, यानी अपने काम के साथ संजीदा नहीं होती, वेन होती हैं और क्रूअल होती हैं, यानी मगरूर होती हैं और बिल्कुल जो है दिमाग से फारिग होती हैं। पप्पा टेल्स हिम दैट मैन आर आल्सो विक्ड एंड फेथलेस। पप्पा जो है वो उसको कहती है अगर औरतें इस तरह होती हैं तो मर्द भी कोई कम नहीं होते, वो भी बेवफा होते हैं, ईमानदार नहीं होते, वो भी विक्ड होते हैं। देयर अराइजेज अ क्वारल एंड दे चैलेंज ईच अदर टू फाइट डुअल। डुअल मीन्स डू आर डाई वाली लड़ाई, कि या तो मरेंगे या मारेंगे, वो वाली लड़ाई शुरू हो जाती है उनके दरमियान। दे टेक द पिस्टल्स एंड प्रपोज टू गो आउट इन द गार्डन। वो एक दूसरे को कहते हैं कि चलो अपनी अपनी पिस्टल्स लेते हैं और गार्डन में जाकर एक दूसरे को गोली मारते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। बट पप्पा डज नॉट नो हाउ टू फायर अ पिस्टल। लेकिन पप्पा नहीं जानती कि पिस्टल कैसे यूज़ करनी है, पिस्तौल जो होता है वो उसको कैसे चलाना है, गोली कैसे चलानी है। बट समीरनोव ऑफर दिस सर्विसेज टू ट्रेन हर। जो समीरनोव होता है वो उसको कहता है कि मुझे चलाना आता है, चले मैं आपको सिखा देता हूँ, जब आप सीख जाएँ तो फिर मुझे गोली मार देना। तो अब उसकी ये प्रपोज़ल वो एक्सेप्ट करती है, वो कहती है ठीक है मुझे सिखाओ। तो जब वो सिखा रहा होता है उसको, तो इसी दौरान क्या हो जाता है, एट दिस मोमेंट दे फॉल इन लव विद ईच अदर। उनको एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो जाता है। नो दे एम्ब्रेस एंड किस ईच अदर। अब वो एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, चुम्मे करते हैं होंठों पे। व्हेन लूका सर्वेंट कम्स विद हिज कंपेनियंस। और जब उसका सर्वेंट जो होता है लूका, वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर एट द स्पॉट यानी उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उन दोनों की लड़ाई हो रही होती है। इसलिए पहुंचते हैं ताकि लूका जो समीरनोव है उसको मारा जा सके, पीटा जा सके। तो जब वो देखते हैं कि उनकी मिस्ट्रेस, अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं। When Luca comes with his companions, all of them are astonished to find their mistress in the arms of Smirnov। तो वो सब के सब हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब तक तो ये लड़ाई कर रहे थे और अब अचानक से ये एक दूसरे की बाहों में इस तरह गले मिल रहे हैं प्यार मोहब्बत से। तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो ये जो वन एक्ट प्ले है ये शुरू होता है नफ़रत से, लड़ाई से, झगड़ों से, और एंड होता है प्यार पर, मोहब्बत पर। तो ये था हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा BA-BSc फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2019 का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर A और उसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर D। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट। अब आप चाहें तो इस समरी को या इस एक्सप्लेनेशन को, इस आंसर को मुकम्मल लिख लें, और याद रहे पेपर में आपने एज इट इज़ लिखना है, अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी और ना ही इसमें से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है, कोई चीज़ इसमें से कैंसिल भी नहीं करनी। इतना ही लिखना है, तभी आपके मार्क्स आपको गारंटी शुदा होंगे।